हेलो सिनेफैम, कैसे हो आप सब। मैं आपके लिए आज एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसमें ड्रामा, थ्रिल, सस्पेंस, रिवेंज, वायलेंस सब है और ये हाल ही में रिलीज हुई है। मैं बात कर रही हूँ बंगाली वेब सीरीज मंदार की, जिसने सिर्फ बंगाली ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का लेवल इम्पॉसिबली हाई सेट कर दिया है। तो आगे ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी फिल्म या वेब सीरीज इस लेवल को बीट कर पाती है। तो इसी बात पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वेब सीरीज का रिव्यू। Mandar, directed by the supremely talented Anirban Bhattacharya, is an ambitious adaptation of Shakespeare's most talked about tragedy, Macbeth. Here, Mandar is played by Debashish Mondol, the biggest find of the decade, who is an NST alumni and a theatre actor and model. Surprisingly, Mandar is his debut as a lead in the OTT space. Previously, he has worked in the Family Man web series. Similarly, a version of Lady Macbeth, Laili, is played by Sohini Sarkar, who definitely needs more appreciation and, of course, recognition in the national level. This is Anirban's directorial debut, and as expected, he surpassed all levels of our imagination. He too plays a humorous yet dark and complex character, Inspector Mukaddar Mukherjee, with brilliance as always. Debesh Roy Chaudhary plays W. Bhai, a version of King Duncan, and Loknath De's Modon Haldar, based on Macduff, were an absolute treat to watch. Also, Anirban's take on the three witches is deeply commendable, namely Majnu, an old lady played by Sajal Mandal, Pedo, a strange looking boy played by Sudeep Dhara, and the third witch will definitely have you shocked. Doyle Roynondi plays Lakumoni and perfectly does justice to the character. Similarly, Korak Samanta's Fontus based on Fleance was very natural. Basically, the whole cast except Sohini and Anirban is new to us but shocked us all with their impeccable performances. Each episode just gets better than the previous one. Let me also tell you this, that Anirban has co-written this series with Pratik Datta. Sankar Devnath's Bonka, a version of Banquo, Macbeth's Alley, is an absolutely amazing character that's played with perfection. The character Moncha, which is based on Malcolm, is played by Diganta, who is not only a very natural actor but also a colossal talent. Last but not the least, Sumana Mukhopadhyay too as Damini was exceptional. पहली बात जो आपको पता नहीं होगी वो ये है कि अनिर्बान ने सोचा तो ये था कि अगर वो कभी मकबैथ का अडेप्टेशन करते भी हैं तो वो उसके डायमेंशंस पूरी तरह बदल देंगे, यानी कि उनका प्लान ये था कि मंदार को एक आईटी प्रोफेशनल या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनाने का। पर फिर जब उन्होंने प्रतीक दत्ता के साथ ये स्टोरी लिखी तो उस दौरान ये प्लान कैंसिल कर दिया और इसे एक स्मॉल टाउन स्टोरी रखने का ही फैसला किया। जो नाम उन्होंने पहले सोच रखा था वो मोगोचे मकबैथ था। थ्री विचेस के ऊपर भी उनका टेक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको देखने पर ही पता चलेगा। नो स्पॉयलर्स फॉर यू गाइस आफ्टर ऑल। Rather than showing them as the powerful supernatural forces, he showed them as the depressed caste with the power of prophecy. One more fact that he could successfully portray was that Duncan was a good king. Macbeth was not, the only reason why he could not hold to his kingship. Subhadeep Guha's background score is extremely appreciable. It fits in so aptly to the series that it might sometimes shock you because in recent times there hasn't been such a near perfect background score anywhere. It gives the eeriness and haunting sense that's required for the setting. अब चलते हैं इस बात पे कि क्या अच्छा लगा है इस सीरीज में। नंबर 1, परफॉर्मेंसेस एक से एक बढ़कर हैं, पर देबाशीष यहाँ हर सीन में शो स्टीलर हैं। सोहिनी का काम भी बेहद अच्छा है। नंबर 2, कूडोज टू अनिर्बान फॉर हिज री इमेजिनेशन ऑफ मकबैथ और थर्ड विच को इतना एक इंटरेस्टिंग मोड देने के लिए। नंबर 3, वन एक्स्ट्रा पॉइंट इस बात के लिए कि इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने सीरीज़ का कैरेक्टराइजेशन किया है और एक रॉयल ड्रामा के सभी डायमेंशंस को बदलकर सोसाइटी के डिप्राइव्ड कास्ट जैसा रिप्रेजेंट किया है। सेक्स जो हमारी सोसाइटी में एक टैबू है, उसे अनिर्बान ने इतनी ब्यूटीफुली स्टोरी में इन्फ्यूज़ किया है कि हमारे सोसाइटी की हिपोक्रेसी के साथ साथ स्टोरी भी हाईलाइट और हाइटन होती है। फिक्शनल टाउन गेलपुर के अमेजिंग सी साइड सेटिंग के साथ इतने नेचुरल और फ्लॉड कैरेक्टर्स को देखकर सच में आपको मज़ा आ जाएगा। राइटिंग और डायरेक्शन की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। नंबर 4, डीओपी सौमिक हलदार जी ने कैमरा के साथ जो मैजिक क्रिएट किया है, स्क्रीन पे देखते वक्त आपको पता चलेगा कि आपने ऐसी फोटोग्राफी कहीं नहीं देखी होगी, एटलीस्ट इन रीसेंट टाइम्स तो नहीं देखी होगी। कैमरा एंगल्स वर एक्सट्रीमली इन्वेंटिव, द लॉन्ग ड्रोन शॉट्स वर इटसेल्फ अ कैरेक्टर। इतना बड़ा लैंडस्केप सेटिंग को भी एकदम परफेक्टली मैच करता है।
Number 5. Somnath Kundu has done a marvelous job in the makeup, be it Lily's imperfectly cold eyes, be it the perfectly tanned bodies of both the leads, or be it Mojnu and Pedu's unbelievable transformation. Everything stands out and speaks volumes about their character arcs. फ्लॉज बहुत कम हैं क्योंकि सीरीज़ एकदम कमेंडेबली नियर परफेक्ट है, पर फिर भी बताती हूँ। नंबर 1, सीरीज़ के एडिटर संगलाप भौमिक ने नो डाउट एकदम बढ़िया एडिटिंग की है, पर बीच के जो एपिसोड्स हैं उन्हें वो थोड़ा छोटा कर सकते थे एंड लास्ट एपिसोड या फिनाले को थोड़ा लंबा कर सकते थे, जिससे कि उन्हें एक बहुत अच्छा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता। नंबर 2, फिनाले एपिसोड जब आप देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि कुछ समझ में आए उससे पहले ही सीरीज़ का दी एंड हो जाता है। तो थोड़ा स्टोरी को बिल्टअप करके फिर मंदार का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ हैंचमैन टू अ लुनाटिक फॉर पावर गाय दिखाते तो और अच्छा हो सकता था। और कुछ कहा तो भगवान माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों फ्लॉज के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई भी फ्लॉ इसमें मिलेगा। पहले आपको बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 18 प्लस के लोग ही इस सीरीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अडल्ट एंड मैच्योर थीम पे बेस्ड है। जहां मकबैथ में सेक्स सेकेंडरी आता है, मंदार में सेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो स्टोरी को ड्राइव करता है। उसके अलावा कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स के साथ साथ बहुत सारा वायलेंस भी है। ओवरऑल आपको बता दूं कि मैं इस वेब सीरीज़ को देती हूँ 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ऑफकोर्स आपको ये देखने के लिए रेकमेंड करती हूँ, पर तभी इसे देखें अगर आप इन सभी एलिमेंट्स को विटनेस करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज मंदा विल बी स्टेइंग विथ यू फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज। तो साथ में ये भी जान लीजिए कि इसे आप होइचोई पर बंगाली में देख सकते हैं, या इसका हिंदी डब्ड वर्जन MX प्लेयर पर भी फ्री में अवेलेबल है। ये होइचोई वर्ल्ड क्लासिक्स की पहली वेंचर थी, काफ़ी धमाकेदार निकली। मैं वेट करती हूँ इनकी सेकंड वेंचर का, ज़रूर उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो पसंद तो आई ही होगी। तो अगर मेरा कंटेंट पसंद आया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन टू रिसीव नोटिफिकेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।